यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे. Good morning. Today I have taken a topic which is slightly uninteresting. Uninteresting for the fact that I am going to tell you some of the salient features of NCERT books. Primarily it relates with the school education, but this education is going to end up to your career building also. So this is not a very easy topic, but I have been impelled to take this NCERT and its importance in a student life. I have to be focused on certain issues wherein it would be very prudent on the part of the student, and I would be telling you why it is important. आजकल देखा जा रहा है कि बच्चों का इंटरेस्ट पढ़ाई के प्रति खत्म होता जा रहा है. Rarely children take interest. Top kept 5% children, they are quite reasonable sort of students whose parents they have nurtured them properly. So they understand the value and importance of NCERT books. कभी कदार कुछ ऐसे पेरेंट्स हैं जहाँ पर किसी घर में कोई UPSC कर गया हो, सिविल सर्वेंट का बैकग्राउंड हो, तो they must have genetically inherited those kind of guidance from their parents itself. Why they should read NCERT books? But as a school one, I have been running the school for almost 2 decades or so. I have been seeing that children are not paying attention to their studies. और जब तक हमारे देश के बच्चे स्कूल पीरियड को बढ़िया से यूटिलाइज नहीं करेंगे, तो आई थिंक इट इज टोटली इनफ्रक्चुअस. मैंने एक वर्ड यूज किया, इनफ्रक्चुअस, बेकार, सब कुछ बेकार हो जाएगा. होल लॉट ऑफ एजुकेशन सिस्टम गोज टोटली इन वेन इफ वी आर नॉट गोइंग टू फोकस ऑन एजुकेशन. मैं इसका तो 3 पहलू बताता हूँ. क्यों NCERT बुक्स इज ए कंप्लीट बुक. अब देखो, NCERT बुक्स कोई प्रमोशन नहीं करती. किसी भी पेपर में, किसी भी एडवर्टीजमेंट में NCERT की पब्लिकेशन नहीं आती, क्योंकि ये मान के चलती है कि इट्स सच ए इम्पॉर्टेंट बुक दैट एवरीवन इज क्रेजी आफ्टर इट. जितनी इसकी पब्लिकेशन होती है वो सारे बुक्स बिक जाते हैं. आज बच्चे नहीं खरीदते, तो जब UPSC की तैयारी करने लगते हैं, देन दे स्टार्ट रिवाइजिंग NCERT बुक्स. By that time they start realizing what a Himalayan blunder they committed by ignoring NCERT books at the school level. अब मैं बताता हूँ कि स्कूल लेवल पे होती क्या है. Most of the school, I don't know, maybe inadvertently or by other extraneous regions, they ignore NCERT books. CBSE affiliated school में भी वही कहानी है. Of course, CBSE is taking persistently this stand that all the school, and last 2-3 years they have been slightly more vocal. Vehemently they have been issuing circulars that NCERT alone would be made compulsory in the school syllabus. But by and large I find it is maybe few school as an exception only who are prescribing NCERT books. करीब तकरीबन सारे किताब प्राइवेट पब्लिकेशन की चलते हैं. जितने भी देवी देवता के नाम हैं, लक्ष्मी पब्लिकेशन, सरस्वती पब्लिकेशन, दुर्गा पब्लिकेशन, माँ जगदम्बे पब्लिकेशन, name any goddesses in our country, after whose name there is one publication, and all those books are simply cut and paste. Now, for your benefit, what I have done, I have just gone to the Google and I have taken the help of this audio visual. Audio is from my side, visual is from the TV. Of course, taking the help from Google as well as my Apple and iPad. So what I have just typed here, why NCERT books is important.
I know what is the result which has come from the Google. Google is not Indian, it is an American. And now they have researched, and only after due research, diligent research, this excerpt must have gone on this. Simple. The language in NCERT books are highly simplified for your better understanding. The language is absolutely simple, very simple, and so much so that at certain stages they have given the word meaning of the difficult words. They have just clarified whether it is a noun, adjective, whatever, and what are the uses and the contextual uses. उसकी शाब्दिक कहाँ पे इसकी प्रतिबिंब के रूप में कहाँ पे इसको यूज किया जाए, एकदम बिल्कुल चरितार्थ किया हुआ है किताबों में, उसको बॉक्स बना के इसको सिंप्लीफाई किया हुआ है. मैं इसलिए बोल रहा हूँ एनसीईआरटी के बारे में, बिकॉज एनसीईआरटी इज ए कंप्लीट पैकेज ऑफ अंडरस्टैंडिंग. आपने कभी देखा है सीढ़ियों पे चढ़ते हुए, एक सीढ़ी के ऊपर दूसरा सीढ़ी, और दो सीढ़ियों के बीच में जो चढ़ाव होती है उसको बोलते हैं इंग्लिश में ग्रेडियंट. ग्रेडियंट ऐसा नहीं होता कि कोई सीढ़ी छोटा हुआ कोई सीढ़ी बहुत ऊंचा हुआ. द ग्रेडियंट हैज टू बी. कभी कभी देखते होगे घर में कि लाइट नहीं भी होती है तो लोग अपने अंदाज से माप लेते हैं कि कौन सा कदम कितने एंगल पे पड़ेगा तो हमारा पांव सीढ़ी के नीचे नहीं गिरेगा. सिमिलरली एंड एग्जैक्टली सेम पैटर्न एनसीईआरटी is following. Why it is following so? Because they know that what stage and what academic standard my first class student, that is class 1 standard student, should be, and what kind of teaching material should be imparted to them. They are not going to give you something, they are not going to thrust upon something which is a very strenuous, which is so boring. No, they are giving you only that kind of input which suits your age and which is easily grasped by you. That is the beauty. So what they are saying, say languages of NCERT books are highly simplified. उसको बहुत simple तरीके से दिया गया है. And for your understanding, extensive research, whole lot of research scholars are there. NCERT की अपनी panel है, and moreover from all over the good schools, whether it is ICSE or CBSE. And there is also panel of NCERT itself. They have recruited on the payroll of NCERT books or NCERT list of scholars, and they keep on taking the feedback mechanism from all experts from different walks of life, and they just try to incorporate along with the provisions of the government. So none of the things should go against the government or which should not prove aberration to the principles of our constitution. It has extensive research. After a lot of deliberation, that book is made. एक प्राइवेट पब्लिकेशन वाला क्या करता है, कहीं का रूट, कहीं का ईटा, कहीं का पत्थर जोड़ के भानुपति का कुंडा जोड़ा, ऐसा आप देखो किताब में. कुछ लोग बोलते हैं प्राइवेट पब्लिकेशन बहुत अच्छा होता है, सब कुछ एक जगह दिया होता है. अरे बाबा यही तो नहीं करना, सब चीज एक जगह नहीं होना चाहिए. अदरवाइज how a child's mind will grow. It has to be contextual. जहाँ पे जो जरूरत हो वहीं पे दो, अदरवाइज तो कुंजी हो गई ना. कुंजी नहीं देने का बच्चे को, कहाँ पे किस चीज की रिक्वायरमेंट वही दो. And the child's brain is very fecundity of your brain is very sharp. You can learn. So the extensive. Next point, NCERT books are written and published after a great amount of research has been done by reputed people in the field. What more you want? And just imagine Mr. Sharma, Mr. Pehwa, Mr. Juneja, Mr. Khanna, one fellow has written a book. What the hell? If suppose that man has shown all kind of eccentricity, you are going to be guided by his whims and fancies. I am not supposed to do that. I will be reading a book which has been researched by many scholars and after due deliberation, and which has been sanctified, which has been given consent by the highest standards of the Ministry of Human Resource Development, which are directly indirectly responsible for publication of NCERT books. उसके बाद NCERT की किताबें आती है. और माइंड यू, जो भी इस वीडियो को देख रहा है, पेरेंट्स देख रहे होंगे, बच्चे देख रहे होंगे, इसके बिना आपका भवसागर पार नहीं होने वाला.
जैसे लोग कहते हैं ना कि मरने के पहले गोदान कर दो, बैतरनी पार कराने के लिए वो कुछ कराते हैं। इसके बिना कुछ नहीं हो सकता। तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधु च सखा तुमेव, तुमेव विद्याधरं तुमेव, तुमेव सर्वं मम देव देव, लीलांबु श्यामलां कोमलांगम पद्मासवारो सर्वामि नमः। इसके बिना कुछ नहीं हो सकता। आप कितना भी हाथ पांव मार लोगे, अंतोतगत्वा यू हैव टू कम बैक। आपको एनसीईआरटी के शरण में आना ही पड़ेगा। इसलिए व्हाई नॉट फ्रॉम बिगनिंग। अभी बहुत सारे स्कूल वाले क्या कर रहे हैं, मैंने सुना है, मेरे स्कूल में ऐसा नहीं होता, इसलिए मैंने सुना है कि बहुत सारे पब्लिकेशन जाके स्कूल को गाइड करते हैं, सर स्कूल आपका ये पर्टिकुलर अमाउंट पकड़ लो, उसके बाद किताब मैं लगाऊंगा। अनाप शनाप बच्चे को, इसीलिए तो एनसीईआरटी सीबीएसई को कहना पड़ा बाद में कि इसके जो बैग है, इसका जो बस्ता है, क्वांटिफाई किया कि सेकेंड एंड थर्ड स्टैंडर्ड के बजाय 4 किलो से ज्यादा का बैग बस्ता नहीं होगा। इतनी मोटी मोटी किताबें, बताओ उसके पास दिमाग है अभी छोटी छोटी क्लास में इतने मोटे मोटे किताब पढ़ने का? ये मैजिक, वो मैजिक, ये करिकुलम, वो करिकुलम, ये रीडिंग, वो रीडिंग। अरे शुरू में ही बच्चों का पढ़ने का इंटरेस्ट ही खत्म हो जाएगा तो बाद में खाक पड़ेगा वो। उसके बाद तो बुकोफोबिया हो जाएगा उसको। आजकल आपने सुना है ना, हाइड्रोफोबिया। He will start running away from the books. Our children has to be given something on a platter which has to be very interesting, which should appear very fascinating and quite, loving. Only then they would be, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी जी बोलते हैं चलो स्कूल चलें। स्कूल में जाके क्या करेंगे, माथा फोड़ने जाएंगे? वहाँ इतनी इतनी मोटी मोटी किताब पढ़ा हुआ है, शर्मा जी ने पूरा एग्जाम्पल ढकेल के रख दिया उसके अंदर। पहवा साहब ने ये लिख दिया, जुनेजा साहब ने वो लिख दिया, बच्चे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। टीचर एक ऊपर से पढ़ाना नहीं चाहता, 35 मिनट का क्लास होता है, हर समय घड़ी देखते रहते हैं। नो, व्हाट वी डू एंड व्हाट आई इंटेंड डूइंग दैट वी हैव टू एम्पावर माय स्टूडेंट। और जब तक मेरे बच्चे सक्षम नहीं हो पाएंगे, आज क्या बताओ गार्जियन, यदि आप सुन रहे हो मेरी बात को तो कान खोल के सुनो। मैं 2 प्रोफेशन के बारे में जानता हूं कि कोई नहीं करना चाहता, बहुत कम लोग ही होते हैं, बहुत जो जिनकी फैमिली बहुत ही पढ़ी लिखी होती है और 3-4 जनरेशन एकेडमिक्स में खपी हुई होती है, वही अपने बच्चे को टीचर बनने के लिए प्रेरित करते हैं। मैंने भी देखा है, हमारे यहाँ बहुत सारे टीचर्स हैं, यंग टीचर्स हैं, एमए किया हुआ, एमएससी किया हुआ, बीएड भी किया हुआ, लेकिन कौन सा तैयारी कर रहा है? ट्रेन में ड्राइवर क्या तैयारी कर रहा है, क्या चीज कर रहा है? बैंकिंग में क्लर्क के लिए तैयारी कर रहा है। इट मीन्स दे फाइंड बैंकिंग क्लर्क मोर लुक्रेटिव देन टीचिंग प्रोफेशन। दलील क्या देता है? सर इसमें पैसा कम है, इसमें 15-16 हज़ार से क्या होगा मेरा? वहां पे 50 हज़ार से सैलरी शुरू होती है। बट दे हैव नेवर ट्राई टू accentuate their power, academic prowess. They have never tried to proliferate. I'm quite sure if they increase their intellectual horizon to an extent, school wala will definitely give him as much they want, because everything is commensurate to what you give. This life is just like quid pro quo. एक हाथ से दो, एक हाथ से लो। This is not like a सरकारी नौकरी। सरकारी नौकरी में क्यों जाना चाहते हैं लोग? एक बार घुस गए, हम दामाद बन गए सरकार के, कोई नहीं निकाल सकता। निकालेंगे तो हम हाई कोर्ट के सामने हड़ताली चौक के पास बैठ जाएंगे, फलना गवर्नमेंट हाय है, फलना गवर्नमेंट हाय है। बट हियर आज के दिन में मैं बोलना चाहता हूँ कि स्कूलों में कैमरा लगाया जाता है। क्यों कैमरा लगाया जाता है? इसलिए लगाया जाता है क्योंकि हर मैनेजमेंट जाती है कि टीचर नहीं पढ़ाना चाहता है, वो किसी कोने में बैठ के छुप के देख रहा है कैमरा से, कौन सा क्लास में हल्ला हो रहा है, नहीं हो रहा है। ये सब सारे नौटंकी करने की क्या जरूरत है? यदि हमारा टीचर एम्पावर्ड हो जाए और वो ठान ले कि मैं बच्चों को पढ़ाऊंगा, तो पढ़ा सकता है। मैं कितने बार टीचर का अपॉइंटमेंट करता हूँ, टीचर बोलता है सर सैलरी कुछ और बढ़ा दीजिए, इतना तो 4,000 तुमको आने जाने में खर्चा हो जाएगा। कभी ये टीचर नहीं मेरे को बोला कि सर 2-3 हज़ार का तो मैं किताब खरीद लेता हूँ, सर सैलरी दीजिएगा नहीं तो मैं किताब कैसे खरीदूंगा, फिर बच्चों को हाई क्वालिटी ऑफ एजुकेशन कैसे दे पाऊंगा? नहीं आज तक मिला। क्यों नहीं मिला? ओरिएंटेशन ही नहीं है, एजुकेशन के प्रति रुझान ही नहीं है, पढ़ाने का इरादा ही नहीं है। किसी तरह से लग जाओ और एक बार ऐड मिले किसी पेपर में
रात दिन देखते रहो, मंडे को ट्यूसडे को किस स्कूल में मिला है। आपको यहाँ 14,000 मिलेगा, वहाँ दिखाएगा हमको 25,000 मिलता है। बार्गेन करते हुए घूम रहा है। जिस स्कूल में स्कार्सिटी है वो ले लेता है टीचर को। हमने कंप्रोमाइज किया अपने एजुकेशन सिस्टम को, और इस मैलिस को दूर करने का सबसे बढ़िया इलाज है। यहाँ पे देखो सारे, हाउ डू आई रीड एनसीईआरटी बुक्स एफिशिएंटली फॉर माय आईएएस एग्जामिनेशन। अब बताओ, आईएएस का एग्जामिनेशन जो टफेस्ट एग्जामिनेशन होता है गवर्नमेंट सरकार में, भारत गणराज्य में इससे टफ कोई एग्जाम नहीं है। पहले आईसीएस होता था, इंडियन सिविल सर्विसेज, जो कि इंग्लैंड में जाके एग्जाम होती थी। अब उसी का काउंटर पार्ट है आईसीएस की काउंटर पार्ट इज आईएएस, आईएएस, आईपीएस and IFS in foreign service. These are three all India services and rest are central services. So अब इसमें क्या क्वेश्चन आता है, इज एनसीईआरटी इनफ फॉर यूपीएससी। अदर क्वेश्चंस क्या आती हैं, व्हाट शुड आई स्टडी फॉर एनसीईआरटी इन यूपीएससी। अब देखो इसमें क्या, टेक्स्ट बुक्स आर पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट फॉर 3 सब्जेक्ट, फॉर these subjects, history, polity, you know, क्या बोलता है, the NCERT books, textbooks are particularly important for these subjects, history, polity means political science, economy, economics, geography, biology, chemistry and physics. Have a time schedule to finish your NCERT reading and stick to it. And stick to it. The word is very simple, structure. You stick to it. ये नहीं कि एक बार पढ़ लिया छोड़ दिया। In our time, when we are taking UPSC examination, we used to put 3 types of pen. Blue for the first reading, second में green and third में red. Red हो जाने का मतलब है वो काफी कंटेंट उसका अपने दिमाग में आ गया है। And keep on revising those. इससे फायदा क्या होता है? You have to manage things in very short time और crisp description. बहुत कम समय में जिस्ट आप लिख सकते हो। यूपीएससी में बहुत लंबा क्वेश्चन नहीं, रामायण महाभारत की तरह पेजेज आफ्टर पेजेज जैसे एमए में हम लोग लिखते थे उस तरह से लिखना नहीं होता। बहुत कम में, कहते हैं ना गागर में सागर, 150 वर्ड्स, 50 वर्ड्स, 25 वर्ड्स में आप समझा पाइए। जैसे कहता है ना, इट डज नॉट मैटर वेदर कैट इज ब्लैक और व्हाइट सो लॉन्ग एज कैट इज माइस। आपकी आंसर आप 50 पन्ने में लिख लो, लेकिन चेक करने वाले को पता ही नहीं चले क्या बोलना चाह रहा है बच्चा। आपकी आंसर शुड बी वेरी क्रिस्प, वेरी शॉर्ट एंड टू द पॉइंट, एकदम एक्सेंचुएटेड, टू द पॉइंट, अर्जुन की आंखों की तरह। ये तभी हो सकता है व्हेन यू हैव डेवलप्ड। अभी क्या होता है, एनसीईआरटी के बारे में क्यों बार बार बोलता हूँ, ये मैं स्कूल लेवल से बच्चों को। अब बताओ, जब सिविल सर्विसेज की तैयारी करने बैठते हैं, हमारी आदत तो बिगड़ी हुई रहती है। कोई भी चीज़ सिस्टमेटिक तरीके से हमने पढ़ा नहीं, और नहीं लिखने की आदत है। वही लक्ष्मी पब्लिकेशन, ये पब्लिकेशन, वो पब्लिकेशन, कहीं कहीं का कोई भी सिस्टमेटाइज तरीके से नहीं है, ना कोई कॉन्सेप्ट बढ़िया से दिया हुआ है, लिखने का तरीका भी नहीं पता है, क्वेश्चन आंसर करने का तरीका भी नहीं पता। तो हमारी क्या होता है कि मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट गोज वेवार्ड। देयरफॉर दिस इज माय अपील कि हमारे पास रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड है, टीचर्स की बहुत अभाव है। आजकल देखो, एक सीबीएसई ने बोल दिया है कि सारे स्कूल में बीए टीचर्स होना चाहिए। सब टीचर्स कहीं से सर्टिफिकेट खरीद के इधर उधर करके बीए मैनेज कर लिया। लेकिन सर्टिफिकेट से क्या होगा भाई, कंटेंट आएगा तभी ना। और बच्चों को एजुकेशन के लिए एनसीईआरटी बुक्स इज मस्ट। इसीलिए बोला जाता है लॉकडाउन पीरियड में भी आप ई पाठशाला डाउनलोड करो, ई पाठशाला डाउनलोड करके पढ़ो उसको। पहले एक सिंपल रीडिंग डाल दो। एक सिंपल रीडिंग में क्या होता है, आपके पास बहुत सारे वर्ड्स के मीनिंग नहीं पता होगा, और वही फॉर्मूला है, यू हैव टू लर्न द मीनिंग बाय लुकिंग द मीनिंग ऑफ द वर्ड इन डिक्शनरी। लुक फॉर ए मीनिंग ऑफ द वर्ड इनटू डिक्शनरी। कोई अच्छा सा डिक्शनरी रख लो, उसके बाद सिनोनिम्स खोजो उसके, मेरी वेबस्टर्स का या रॉजर थेसोरसिस में उसके एंटोनिम्स देख लो। आपके पास एकदम दूध का दूध पानी हो जाएगा। जैसे ही सिनोनिम्स में क्यों बोल रहा हूँ, बहुत सारे वर्ड्स, लाइक वर्ड्स, सिमिलर वर्ड्स, नियर टू इट्स मीनिंग वर्ड्स मिल जाएंगे। ब्रह्मांड तो बहुत बड़ा है, लेकिन उतना ही वर्ड से पूरा काम थोड़ी चल जाएगा। लेकिन क्या है, सिचुएशनल वर्ड्स बने हुए हैं जो कि नियर टू इट्स मीनिंग डिस्क्राइब करने का है। एंटोनिम्स भी वैसा ही कुछ है। तो आप जब इसको पढ़ लोगे तो आपकी क्लैरिटी अच्छी हो जाएगी।
क्लैरिटी जब अच्छी हो जाएगी, then you would be in a position to explain things much better. अब इसको बार बार पढ़ते रहो, और यही चीज जब आप ग्रेजुएशन करने के बाद, पोस्ट ग्रेजुएशन करने के वक्त आप यूपीएससी दोगे, यू विल फाइंड सो लवली. जिसके पास सक्सेस मिल जाता है वही बच्चे कहते हैं कि कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन, कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन. कौन सा बीता हुआ दिन? स्कूल का, हंसते खेलते पास करके एग्जाम. लेकिन ये संभव नहीं हो पाएगा यदि स्कूलिंग आपका अच्छा नहीं हुआ तो. नाक रगड़ के मर जाओगे, फिर भी बाद में कोई भी चीज करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा. Therefore, I suggest only NCERT books. Thank you very much. यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि